درود پڑھو آل محمد ذات ہے۔ سلوات کی سوگات ہے 14 کے واسطے، سلوات کی سوگات ہے 14 کے واسطے، ہر ایک حسین بات ہے 14 کے واسطے۔ یہ 14 طبق اس بات کی دلیل ہے محسن، یہ پوری کائنات ہے 14 کے واسطے۔ آواز بلند سلوات۔ ذاکر الباد عمران حیدر بخاری آپ علماء شریف علیہ تشریف لے آ چکے نے، اور انہاں دے بعد عطا حسین عطا خانے والے وہ بھی پہنچ گئے نے، اور انہاں تو بعد زرین عباس مندرالیے وہ بھی سالے پڑھن والے آگے نے۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد ولایت علی جناب حسنان حیدر باجوہ صاحب اپنی عقیدت نال دلیز محمد آل محمد دے قصہ دینتے ہیں۔ درود شریف آل محمد دی ذات تے۔ نعرہ تکبیر۔ علی کے اللہ کا نام ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین، جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین، الذی اذھب اللہ عنکم رجسا وطہرہم تطہیرا۔ صلوات پڑھو۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ لو کارہ الکافرون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ دعا ہے رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس عزت والے دربار میں آیا میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے مالک محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، مالک سب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے بار میں آقا کو اس نے ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو، بلند تر صلوات پڑھو۔ وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ دوسرا سال، پچھلے سال ہم نے اس بات پہ بات چھوڑی تھی، شاہ صاحب پردوں میں رہنے والے نے اپنے آخری پردے کے پاس اپنے محبوب کو بلا کر بیٹھا کر کائنات کی سب سے بڑی پردہ کا رشتہ مانگا تھا۔ یقیناً ذہن میں ہوگی، میں نے وعدہ کیا تھا
वक्त नहीं मिला। वो मेरा असल है, वही मेरा वक्त है, वही मेरे कलम से जो मेरे मालिक ने मेरी ज़ुबान से कहलवाना था। पर्दों में रहने वाले ने अपने आखिरी पर्दे के पास अपने महबूब को बुलाकर बिठाकर कायनात की सबसे बड़ी पर्दादार का रिश्ता मांग के, अब आपने तवज्जोहात मेरी जानब रखनी है मेरे भाई, अब ये चहल पहल ना हो ताकि मेरे लफ्ज़ दीवारों की नज़र ना हो जाएं। अपने आखिरी पर्दे के पास बुलाकर बड़े अच्छे अंदाज में आपने पहला जुमला बगैर किसी तशरीह के मैंने आपके सामने बयान किया। आपने सबूत दिया कि मुझे तशरीह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसे कबूल फरमा लिया। लफ्ज़ अगला भी बहुत कीमती और बहुत बड़ा है, वो भी अपनी ज़बान को दहन के जिंदान की कैद से रिहा करके वसूल कर लेना। भाई तवज्जोहात रखना, अल्लाह ने अपने नबी को, भाई बहुत तवज्जो, अपने नबी को अपने आखिरी पर्दे के पास बुलाकर बिठाकर कायनात की सबसे बड़ी पर्दादार का रिश्ता मांग के रसूल को कहा जा के जमीन पे ऐलान कर दे कि वजहुल्लाह का निकाह सिर्फ हिजाबुल्लाह से हो सकता है। वजहुल्लाह का निकाह सिर्फ हिजाबुल्लाह से, पर्दे की शादी सिर्फ चेहरे से हो सकती है। अब रसूल से अल्लाह ने रिश्ता मांग लिया था, ज़हरा का, जनाब सैयदा का अल्लाह ने रिश्ता मांग लिया था। भाई लफ्ज़ और आसान करके कहूँ कि रसूल अल्लाह के घर वालों की अल्लाह के घर वालों से रिश्तेदारी हो गई। सलामत रहे। जी हाँ, रसूल अल्लाह के शाह साहब घर वालों, अल्लाह के घर वालों से रिश्तेदारी हो गई। अब हुआ यूं कि जब रसूल पर्दा अहदियत के करीब पहुंचना आप सुन चुके, मैं वो पुरानी बातें दोबारा नहीं करूंगा, इस बात को आगे लेके चलूंगा और जो उन्वान था, मेरा दिल था, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 1 घंटा है मेरे पास, मैं बड़ी अकीदत से नौकरी पेश करूंगा, कबूल फरमा लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग दौलत को इज्जत समझते हैं, मैं दौलत को इज्जत नहीं, इज्जत को दौलत समझता हूँ। जिसके पास इज्जत है उसके पास सब कुछ है। आपकी दवाओं का सहारा चाहिए मुझे। सरकार क्या किया, पर्दा अहदियत के करीब बुलाकर जनाब सैयदा का रिश्ता मांग लिया। अब रिश्ता मांगने के बाद रसूल ने तौहीद से कहा, मेरे मालिक ये बातें तो तेरे मेरे दरमियान की हैं, ये बातें तो तेरे मेरे दरमियान की हैं, ये बातें तो अर्शी हैं, फर्शी क्या समझें, ये बातें तो अर्शी हैं। वो कम वक्त सैयदा अक़द सैयदा की ख्वाहिश रखते हैं, वो तमन्ना रखते हैं अक़द सैयदा की। अब उनको मैं कैसे समझाऊं, मेरे मालिक अब शादी का रिश्ता नहीं, शादी का पैगाम किसी कम्मी को दे के भेज। रिश्ता मांग चुका, बेदार रहना, अब किसी को पैगाम देकर जमीन पे भेज ताकि वो जाके जमीन पे बताए कि सैयदा का रिश्ता खुदा ने मांगा है, सैयदा का रिश्ता। शाह साहब मैं आपके इंतजार में जुमला रोक के खड़ा हूँ, अब मेरी खिताबत को एक और टेक मिल जाएगी। खुदा की कसम मुझे दिल से प्यार है अख्तर शाह जी से। अब तो जो हाथ आपने मेरी तरफ रखनी है, बहुत तवज्जो। भाई न्याज मौला मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे गर्दन न फिरे, गर्दन फिरने से इबादत बातिल हो जाती है। मैं अपनी बात इन दीवारों की नजर करके नहीं चला जाऊंगा। अब आपने मेरे लिए दुआ करनी, हर नौकर हाजिर है। भाई जब कहा ना कि वो अक़द सैयदा की तमन्ना रखते हैं, वो शादी सैयदा की तमन्ना रखते हैं, उनको क्या पता कि अर्शी बातें क्या है, ये बातें हैं तेरे मेरे दरमियान की। उनको मैं कैसे समझाऊं। भाई बहुत नफीस जुमला कहने लगा हूं, उस वक्त आवाज़ तौहीद आती है, मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं, जा जमीन पे जाकर पैगाम दे दो, ज़हरा की शादी का पैगाम ज़हरा लेकर आएगा। ज़हरा की ना 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 इस तरह नहीं बाजू बोलन करे, बोलो सखी सरे डोरे कलंदरे ना। ज़हरा की शादी का पैगाम ज़हरा लेकर आए। ये मेरे महबूब जाके तू परेशान ना हो, ज़हरा की शादी का रिश्ता नहीं, पैगाम। अब सरकार आ गए, सरकार आए, आफ्ताब रिसालत उफ़क़ के मिंबर पे चमक रहा था, सितारों की मानिंद असहाब ने घेर रखा था कि नूर मुस्तफ़ा अपनी ज़याबारियों से मस्जिद को रोशन किए हुए था कि इस नफीस से माहौल में वो लब हिले जो वही के बगैर नहीं हिलते। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास क़िबला कहा करते थे कि ये वही बोलता है जो वही बोलता है।
بدबख्त होती हैं वो कौमें जो अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं। हाँ, अब सरकार के लब हिले। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, भाई जरा डिस्टर्ब ना करो, ऐ मेरे सहाबा, आज आसमान से एक सितारा उतरेगा, जिसके दर की दहलीज पे सितारा उतरेगा, वही मेरा जानशीन होगा, उसी से अक़्दे सैयदा होगा, वही मेरा जानशीन होगा, उसी से अक़्दे सैयदा होगा। अब रसूल ने जब ये ऐलान कर दिया ना, तो बड़े बड़े जानशीन बनने की तमन्ना रखने वालों ने अपने अपने घरों में जाकर तैयारी शुरू कर दी। कैसी तैयारी की? सोबान जला दिए, गलों में गुलों के हार पहन लिए, सितारा हमारे घर में उतरेगा, जानशीन मैं बनूंगा, सितारा मेरी दहलीज पे उतरेगा, जानशीन मैं बनूंगा, सितारा मेरे घर पे उतरेगा, जानशीन मैं बनूंगा, सितारा भी उतरेगा, जानशीन भी बनूंगा। यानी इनको पता चल गया कि जानशीन खुद नहीं, भाई जागना न्याज़े मौला, जानशीन खुद नहीं बनते, वो बनाता है। आए पता चल गया। अब इन्होंने जब ये ख्वाहिश रखी, गलों में गुलों के हार पहन लिए, सोबान जला दिए, गाँव तक ये लगा दिए, ठीक ठाक होके बैठ गए। अब ये बैठ गए कि सितारा अर्श मौला से चला, हुक्म खुदा से सितारा चला। ना 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 शाह साहब, मैंने सैयदा से खैरात ही नहीं मांगी अगर मैं आपका मैयार का जुमला न कहूँ। लफ्ज़ तब्दील करके हसनैन हैदर बाजवा कहता है, अर्श मौला से सितारा चला, फर्श को मौला बनाने वालों ने अर्श मौला सलाम, फर्श को मोहल्ला बनाने वालों के घर की तरफ, जिन्होंने अर्श को नहीं फर्श को मोहल्ला बना दिया। ओए होए होए होए, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद है जो करबला मोहल्ला है, करबला मोहल्ला है, मदीना मुनव्वरा है, करबला मोहल्ला है, मदीना मुनव्वरा है, मक्का जो है वो मुकर्रमा है, नजफ अशरफ है, मशहद मुकद्दस है। अल्लाह की इस कायनात में वाहिद है जो करबला मोहल्ला है। उलमाए इरफान फरमाते हैं, मोहल्ला कहते ही उसे है जहां अल्लाह मौजूद हो, जहां अल्लाह मौजूद हो, करबला उसे। और याद रखो, अब बातों से बातें निकल रही हैं, मैं तो करूंगा, करबला मोहल्ला है। और याद रखो, ये करबला जो है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये तुम्हारे मौला सादिक मौला का फरमान है, अन्नल कब्रल हुसैना, सलवात पढ़े बोला अन्नल कब्रल हुसैना अला तुरअतिन मिन तुरइन जन्ना। ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जुमला मैं एक बहुत बारीक कहने जा रहा हूं, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और याद रखो, जो करबला में दफन होगा ना, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। पीछे रह गए, ना ना ना, अभी मैंने आपके सामने कहा ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। जो बंदा ये सोच रहा है कि ये कानून खुदा को पामाल कर रहा है, फरिश्ते तो हर किसी की कब्र में आते हैं, हिसाब लेते हैं, भाई करबला में जो दफन होगा उसका हिसाब फरिश्ते क्यों नहीं लेंगे? भाई जरा अकल करो, जब है ही जन्नत, हिसाब कैसा? जब है ही जन्नत, हिसाब कैसा? पहले ही जन्नत है। उलमाए इरफान फरमाते हैं कि ये जन्नत का टुकड़ा जो है, इसे रोजे कयामत फरिश्ते उठाकर दोबारा जन्नत में इसी तरह ले जाएंगे। जब फरिश्ते उठाकर लेकर जाने लगेंगे, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, मेरे मालिक, आवाज तौहीद से सवाल करेंगे, मेरे अल्लाह, जब हम इस टुकड़े को लेके आए थे ये बड़ा भारी था, ये बड़ा वजनी था, अब इसे वापस लेके जा रहे हैं, ये हल्का हो गया है, इसका अब वजन नहीं रहा। उस वक्त ये आपके अकीदे की मैं वकालत करने लगा, उस वक्त आवाज़ तौहीद आएगी। तुम्हें पता नहीं है 10 मुहर्रम से लेकर आज रोज़े क़यामत तक हुसैन के मातमी, हुसैन के मानने वाले, हुसैन के अज़ादार, हुसैन की मट्टी खाके शिफा शिफा समझ के अपने अपने घरों को ले गए हैं। मैं अल्लाह होकर तुम्हें हुक्म देता हूँ, जिस घर में मट्टी का एक जर्रा भी है उसे भी जन्नत मिले। जिसमें एक जर्रा भी है, अल्लाह अकबर, मैं आपका मन में, उसको भी जन्नत में ले आओ। ये है खाके शिफा, ये है करबला की मिट्टी,
مٹی میں شفا ہوتی نہیں، لیکن حسین کتنا بڑا لجپال ہے کہ اس نے مٹی میں شفا رکھ دی ہے، اس نے مٹی میں شفا رکھ دی ہے۔ اب جاگنا نیاز مولا، بات وہیں پہ ہماری رکی ہوئی تھی جس طرف میں نکل گیا آگے، بات وہیں پر کیا کہا؟ ستارہ جائے گا، بیٹا ستارہ جائے گا، جس گھر کی دہلیز پہ ستارہ جھکے گا وہی جانشین، اسی سے عقد سیدہ۔ یہ ہونے کے بعد ہوا یوں کہ ستارہ اب عرش مولا سے چلا، حکم خدا سے ستارے کا چلنا تھا، ادھر ستارہ چلا، ستارے نے چلتے 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 جب زمین پہ دیکھا، کچھ گھروں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سبان جلا کے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، عقد سیدہ کی تمنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ستارے نے جب یہ منظر دیکھا، ستارے نے کہا میں اگر اتفاق سے جلدی سے علی کی دہلیز پہ گر گیا، کیونکہ مجھے تو گرنا علی کی دہلیز پر ہے، مجھے تو گرنا علی کے ہی دروازے پہ ہے، لیکن اگر میں ایسے گر گیا یہ لوگ کہیں گے کہ ستارہ تو اتفاق سے علی کے دروازے پہ گر گیا، یہ تو پہلے ہی علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے، اتفاق سے پیدا ہونے والوں کے بچے ہیں۔ سلامت یہ تو اتفاق سے پیدا ہونے والے علاقوں کے بچے جو ہیں، یہ تو پہلے ہی علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہیں، ان جاہلوں کو پتہ نہیں اگر میں ایسے گر گیا یہ کہیں گے علی کی دہلیز پہ ایسے ہی گر گیا۔ ستارے نے کیا کیا؟ ستارے نے زمین سے کچھ قریب آ کے علی کے گھر کے دہلیز کا چکر لگانا شروع کیا۔ علی کے گھر کا میں لفظ تبدیل کر کے کہتا ہوں، علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا، علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا۔ ستارے نے علی کے گھر کا طواف کر کے ان جاہلوں کو بتایا، جاہلوں یاد رکھو تمہارے طواف کی جگہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے طواف کی جگہ علی کا۔ بکھرا ہوا نہیں مجھے نعرہ چاہیے، ایک ہی بازو بلند کرے حیدر۔ مجھے سب سننا بھی آتا ہے، سنانا بھی آتا ہے۔ اب تو جو ہاتھ کرنی ہے، میں اس انتظار میں نہیں رہوں گا، آپ بولے تو میں بولوں۔ نہ مجھے میری یہی خواہش ہے، یہی حسرت ہے، یہی دعا ہے اپنی مالکہ سے، میری معظم ابھی بھی مجھے کبھی خطابت میں کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے، لفظوں کے خیرات بخش دینا، بس میری بی بی نے عطا کر دی۔ اب تو جو ہاتھ آپ نے کیا کہا؟ تمہارے طواف کی جگہ اللہ کا گھر، ہم عرش والوں کے طواف کی جگہ علی کا گھر۔ یہی تو وجہ ہے فرشتے مسکین بن کے آتے تھے تو علی کے گھر پہ، اللہ کے گھر پہ نہیں۔ نفاست سمجھو، اللہ کے قرب میں رہتے تھے، آتے تھے تو سیدہ کی دہلیز پہ غریب بن کر، مسکین بن کر، اسیر بن کر، اور ان جاہلوں کو بتاتے تھے ہم فرشتے ہو کر جنہیں کھانے کی بھی ضرورت نہیں، جنہیں روٹیوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم نہ کھانے والے کھانا مان کر تمہیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ بدعت نہیں، عبادت۔ مالک آپ کے عزتوں میں اضافہ فرمائے، جسم میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے، اب سرکار یہ چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے فرشتہ، یہ جو ستارہ ہے زہرہ طواف کر رہا ہے، ادھر زہرہ آسمان سے نکل کے علی کے گھر کا طواف کر رہا ہے، ادھر زہرہ صحن عصمت میں آ کے ایک مسند بچھا کے بیٹھ کر دیکھنا چاہتی ہیں کہ زہرہ ستارہ میری قسمت کا ستارہ کس سے ملاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ستارہ کس سے ملاتا ہے؟ ہوا یوں سرکار، اب ستارے نے طواف کرتے کرتے ایک ایسا در دیکھا جہاں انبیاء جھک کر قیام کر رہے تھے، فرشتے سلام کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، دربانی کر رہے تھے۔ جب ستارے نے ایسا در دیکھا اور در دیکھنے کے بعد ستارہ اس در پہ جھک گیا، اس دہلیز پہ گر گیا، ادھر ستارہ اس دہلیز پہ گرا، اس نے وہ مقام حاصل کر لیا۔ ستارے نے عقل کرو، عقل کے اندو، ستارے نے علی کی دہلیز پہ جھک کے وہ مقام حاصل کر لیا کہ جس کی ساری کائنات قسمیں اٹھاتی ہے اس نے اس ستارے کی قسم اٹھا لی، اس نے اس ستارے کی قسم اٹھا لی۔ ستارہ علی کی دہلیز پہ گر گیا، جانشین بھی علی، عقد سیدہ بھی علی سے۔
इधर क्या हुआ, जो हसरतें लेके बैठे थे, जो तमन्नाएं लेके बैठे थे, जो गलों में गुलों के हार पहन के बैठे थे, वो हार नबी के गिलों में तब्दील हो गए, वो हार नबी से गिलों में तब्दील हो गए। अब ये बंदे इनकी तमन्नाएं नामुरादी के समुंदर में गर्क हो गई। अब सब कुछ होने के बाद महबूब और मुहिब ने मिलकर एक दिन मुकर्रर किया। तफसील से मजमून पढ़ रहा हूँ, ये मिंबर पर पढ़े नहीं जाते। एक दिन मुकर्रर किया, महबूब और मुहिब ने मिलकर अक़दे सैयदा का जागना, बीबी का निकाह पहले है, रुखसती बाद में है। निकाह पहले है, रुखसती बाद में है। अक़दे सैयदा के लिए दिन मुकर्रर किया गया। दिन मुकर्रर करने के बाद जागना नियाज़ मौला, अक़दे सैयदा का दिन मुकर्रर करने के बाद वो वक्त आ गया जिस दिन अक़दे सैयदा होना था। इतना लतीफ़ जुमला मैं कहने लगा हूँ, ये कुम की तारीख की किताबों में भी लिखा हुआ है, जो हमें मदरसों में पढ़ाई जाती है। आम किताब मतलब मुतालाती किताब जो हमें पढ़ाई जाती है, उसमें भी ये लफ्ज़ मैंने अपनी आंखों से ना पढ़े हूँ। मैं जनाब का मुजरिम, मैं 14 का मुजरिम, मैं अल्लाह का मुजरिम। सरकार अब वहां पे हुआ क्या, जागना नियाज़े मौला, दिन मुकर्रर करने के बाद वो दिन आया, आवाज़ तौहीद आती है, सैयदा मैंने करना है तेरा अक़्द, मैंने पढ़ना है तेरा अक़्द। भाई नकाह ख्वाह ही अल्लाह था, नकाह ख्वाह ही अल्लाह था, मैंने पढ़ना है तेरा अक़्द। अब ये शरीयत का मसला है, निकाह से पहले हक महर दिया जाता है। निकाह से पहले हक महर दुल्हन का हक होता है। जब तक देना तब तक निकाह होता नहीं, हक महर वाजिब है। और नमाजियों जिस तरह नमाज वाजिब समझते हो ना, इस तरह हक महर वाजिब है। अब वाजिब देना जरूरी होता है। आवाज़ तौहीद आती है, अब जागना नियाज़ मौला, आवाज़ तौहीद आती है। निकाह ख्वाह भी मैं हूँ, दुल्हा का वारिस भी मैं हूँ, निकाह ख्वाह भी मैं हूँ, दुल्हा का वारिस भी मैं हूँ। अब हक महर भी मैंने देना है, निकाह भी मैंने खुद पढ़ना है। सैयदा मांग, तुझे हक महर में क्या दूं, तुझे सर दे दूं, तुझे ज़ेवर दे दूं, तुझे ज़मीनें दे दूं, तुझे कायनात दे दूं। आप इससे ज्यादा चुप हो तो सुनो, हसनैन हैदर बनो, इससे ज्यादा कलेजे का लहू देगा। कहा सर दे दूं, ज़ेवर दे दूं, ज़मीनें दे दूं, कायनात दे दूं, जन्नत दे दूं, पहाड़ दे दूं, सरा दे दूं, सरैया दे दूं, कायनात की कोई चीज भी मांग, मैं अल्लाह होकर वादा करता हूँ वो तेरे नाम कर दूंगा। उस वक्त सैयदा ने बेनियाज से, नियाज़े मौला लफ्ज़ समझना मेरा, उस वक्त सैयदा ने बेनियाज से, बेनियाजी से कहा, ये सब मखलूक हैं, अना खालिक, हमें मखलूक वाला नहीं, खालिक वाला चाहिए। या सैयदा अनल मखलूक, अनल खालिक, हाज़ल मखलूक। सलामत रहे। ये सब मखलूकी चीजें हैं। हमें वो चीज चाहिए, खालिक वाली चीज चाहिए, जो खालिक के शाया निशान हो। ये तो सब हमने खल्क की हैं, ये तो हमारे सदके में बनी है। हमें ये नहीं चाहिए उस वक्त खुदा की डालने की कोशिश करो। खिताबत में इस लफ्ज को डाल नहीं सकता। जब बेटी का निकाह होता है, सबसे नाजुक मरहला होता है। बेटी ने एक घर से दूसरे घर जाना होता है, अपने प्यारों को छोड़ना होता है। उस नाजुक मरहले में भी आज करीमा बीबी ने हमें भूला नहीं है, हमें छोड़ा नहीं है। सैयदा ने क्या कहा, सैयदा ने कहा हक महर में लिख। तौहीद ने कहा क्या लिखूं, कहा लिख मेरे हुसैन के मातमियों की शफाअत। ना 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 ना, किताब के लफ्ज ना हो, इसी चौक में खड़ा करके मुझे गोली मार दे। गुनाहगारों की लाहौर मानने वालों की शफाअत लिख। ये है खालिक के शाया निशान, ना किताब के लफ्ज। ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने बहुत बड़ी किताब लिखी, सीरत फातिमा। उनसे लेकर ये सबसे छोटी किताब जो उलमा ने 14-15 बंदों ने मिलकर लिखी है, तारीख इस्लाम, उसमें भी ये लफ्ज मौजूद है। सैयदा ने कहा मेरे मानने वालों की शफाअत लिख मेरे हक महर में। अब शफाअत होती किसकी है?
मेरी कौम ये लफ्ज समझे हम कोई पागल है? ऐसे इस करीमा बीबी को, इस डर को ऐसे तो नहीं मानते, हम पागल हैं? हमें क्या बेवकूफ समझो? हम इतना खर्च जात करके ये गम खरीदते हैं। दुनिया तो करोड़ों रुपए लगाती है, दुनिया मर जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है अपने घर से दूर, अपने मुल्क से दूर, पैसे कमाने के लिए कि हमसे गम दूर हो जाए। लेकिन तुम्हें इस कौम का मौजज़ा नजर नहीं आता। हम पैसे हाथों से लगाते हैं, हमें हुसैन का गम मिल जाए, हमें हुसैन का गम मिल जाए। इसलिए बीबी ने हमें भी भूला नहीं है, बीबी ने हमारी शफात मांगी है। शफात हमेशा उसकी होती है जो गुनाहगार हो। हम पे फतवे लगाने वाले याद रखो, हम कच्चे अकीदे के लोग नहीं हैं। ये कह देना नमाज पढ़ ली, पता नहीं कबूल हुई या ना हुई। हम आजादारी करने के बाद मुतमईन हो के अपने घर में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमसे अहद किया है उस बीबी ने, जो भाई जागना ने आज़े मौला, जो आम बंदे की बेटी नहीं, जनाब ज़ैनब जागना ने आज़े मौला, हमसे उस बीबी ने वादा किया है। ज़ैनब ज़बान अल्लाह की, ज़बान की ज़ीनत बीबी ने हमसे वादा किया। अल्लाहु अकबर, मैं लफ्ज़ बहुत बड़ा कह गया, ये मारिफत के आंसू हैं। बीबी कबूल फरमाए, मेरी कोई मजाल नहीं। अल्लाह की ज़बान की ज़ीनत, अली है ना अल्लाह की ज़बान, लिसानुल्लाह है ना, अपने बाबा की ज़ीनत बीबी ने हमसे वादा किया। वापस आओ, कबूल फरमाना। मालिक आपके इन आंसुओं का सदका मुझे और आपको किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। मालिक आपके और मेरी इज्जत और बख्त में इजाफा फरमाए। गमे हुसैनी हमें नसीब हो, दुनिया से जिस तरह दूर है उस तरह दूर ही रहे। जागना नियाज़ मौला, ये मेरे मालिक का करम है, मेरी कोई औकात नहीं है जाती। अब तवज्जो हाथ मेरी जानिब रखना, क्योंकि करीम बड़े हैं मेरे मालिक। अगर ये अपना काम लेना चाहे तो मैं तो क्या हूँ, ये तो यहूदियों के कुत्तों से ले लिया करते हैं। हाय 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 हाय, ये तो यहूदी के कुत्ते से काम ले लेते हैं। ये बड़े करीम बादशाह हैं, बस ये उनका करम है। वापिस आते हैं, क्या कहा? मुझे मेरे मानने वालों की शफात चाहिए हक महर में। अब मानने वालों की शफात हक महर में लिखी कैसे? किताब मिलियन किताब पढ़ूंगा, लफ्ज किताब का ना हो, मैं जनाब का मुजरिम हूँ। किताब पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस अंदाज में मैं कोशिश करूँ, मैं एक सलवात पढ़े, बुलंदर पढ़े, जल्दी इसको जरा ठीक करो। या सैयद, अब आपने मेरी तरफ देखना है। वादा हो गया, मेरे मानने वालों की शफात लिख मेरे हक महर। ये सच्ची बात है, और मैंने जो अपनी किताबों में जो मैंने पढ़ी है, उलमाए इरफान से सुनी है, यही बात है। पानी वाला सुना होगा, पढ़ते हैं, खतबा पढ़ते हैं, जाकिरीन पढ़ते हैं। मैं ये इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि पानी उनका हक महर नहीं होता। भाई जागना नियाज़ मौला, पानी उनका हक महर कैसे हो सकता है जो पानी के खालिक हैं, जो समुद्रों के खालिक हैं, जो पूरी कायनात के मालिक हैं। ये है हकीकत में हक महर सैयदा का। अब हुआ यूं, अब पढ़ना था निकाह। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, वो करते रहेंगे। अब पढ़ना था निकाह। मैं शाह साहब इतने बड़े लफ्ज में इस बात को बाद में छुपा कर करूंगा, खोलना आपने है। किसका निकाह? एक जुमले में मैंने पढ़ना है, मैंने तफसील में जाना नहीं, वाकया सुनाता रहूं, आप सुनते रहें, वक्त जाता रहे। मैं एक जुमले में आपको वो समझाने लगा हूं, इस कौम को बताने लगा हूं किसका निकाह किससे किसने पढ़ा था, किसका निकाह किसने पढ़ा था। जागने वाले मौला, हिजाबे किबरिया से सिफाते किबरिया का निकाह किबरिया ने पढ़ दिया। अल्लाहु अकबर, हिजाबे किबरिया से सिफाते किबरिया का निकाह किबरिया ने पढ़ दिया, निकाह हो गया। अब उनका सदका तकसीम किया गया जिन पे सदका हराम है। अब उनका सदका तकसीम किया गया जिनके सदके पूरी कायनात बनी है। सरकार, अब ये सदके में घिरा गया। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने शजरे तूबा को हुक्म दिया हलाया जाए। शजरे तूबा हिला, वहां से कुछ लालो गोहरो यकूत गिरे,
जब वो गिरे आवाज़ तौहीद आती है, हुराने जन्नत, गिलमाने जन्नत, मलाइका, फरिश्ते, रज़वाने जन्नत, ये सारे यकूत और गोहर, लालो गोहर जो है ना, ये सैयदा की शादी की खुशी के सबके में उठा लो, सैयदा की शादी की खुशी में उठा लो। अब सारे फरिश्तों ने लालो गोहर उठा लिए। इसी तरह किताब वाले लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, इन्होंने लालो गोहर उठा लिए। उठाने के बाद बात ज़हन में रखना शफात वाली भाई, उठाने के बाद इन्होंने जब अपने मलकूती हाथों में लिए, अपने मलकूती हाथों में लेने के बाद इन हुराने जन्नत, रिजवाने जन्नत, हुराने जन्नत, गिलमाने जन्नत, रिजवाने जन्नत, मलाइका फरिश्तों ने देखा इन लालो गोहर पे, इन यकूतों पे एक अबारत लिखी हुई थी अल्लाह की तरफ से। अबारत क्या लिखी हुई थी? बारातुम मिनन नार, तुम्हें अली और फातिमा की शादी की खुशी के सदके में आतिशे जहन्नम से निजात मिल गई। जब फरिश्तों ने ये इबारत पढ़ी, हैरान होके किबरियाई की तन्हाई में वजूद न रखने वाले मौजूद खुदा से सवाल करते हैं, हमारे मालिक हम तो पहले जन्नत में रहते हैं, ये जो इस पे इबारत लिखी हुई है आतिशे जहन्नम से निजात मिल गई, ये आतिशे जहन्नम से निजात का नोश्ता कैसा? हम तो पहले जन्नत में रहते हैं। उस वक्त आवाज़ तौहीद आती है, तुम्हें पता नहीं है हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मुझे पता है ये लालो गोहर तुम्हारे किसी काम के नहीं, लेकिन तुमने अभी देखा नहीं, एक मुआहिदा मैंने सैयदा से किया, उसे मैं तहरीर में बदलना चाहता था। बस ये लालो गोहर संभाल के रख लो, जब रोजे कयामत अली और फातिमा के मानने वाले आए तो ये निजात की मुस्तनद सनद उनमें तकसीम कर देना। ना बाजू बुलंद करो, है नरे। ये निजात की मुस्तनद सनद उन मानने वालों में तकसीम कर देना। पता चल गया कि मुआहिदा तौहीद ने लिखा कैसे है। इसी तरह किताबों में लिखा हुआ। हजूर अब हुआ यूं कि अब होना थी सैयदा की रुखसती, अब होना थी रुखसती। माहौल कैसा था कि आफताब आलम ताब मगरबी घाटियों से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रहा था। सियारे सितारे शादी की खुशी में इधर उधर रक्सान थे, सवाबित नगरान थे। बड़ा खूबसूरत सा माहौल था। लफ्ज़ों में मैं नहीं जाता, चलो समेट लेता हूँ बात को। हुआ यूँ कि शादी की खुशी में सारी कायनात खुश थी, भला खुश होती भी क्यों ना। एक लफ्ज़ बात ही ख़त्म कर देते हैं, भला शाह साहब खुश होती भी क्यों ना, क्योंकि आज उसके घर की खुशी थी जिसका घर ही नहीं है। अब सरकार ये दुल्हा की तैयारी, दुल्हा को तैयार किया गया। दुल्हा था अली, बारात जानी थी अली वलील्लाह की रसूलुल्लाह के घर में। दुल्हा की तैयारी कैसी हुई? दुल्हा की तैयारी में जो लिखा है उलमा ने, वो लिखते हैं कि कीमती कीमती जागना न्याज़ मौला, कीमती कीमती चादर अली ने अपने कंधों पे रखी। भाई अली कायनात का अमीर है, अली कायनात का बादशाह है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। लोग कहते हैं अली मजदूरी करता रहा यहूदी के दरबार में। ना 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 बाबा अख्तर शाह जी, मेरा ये अकीदा ही नहीं है। अल्लाह के हाथ मजदूरी नहीं करते, अल्लाह के हाथ कभी मजदूरी नहीं किया करते। वो कायनात का अमीर बादशाह था, वो कायनात का अजीम बादशाह था। बस जागना न्याज़ मौला के अली की तैयारी हुई। तैयारी कैसी हुई? माँ जागल बसर का सुरमा था, शारा बन तहूरा के सागर थे। भाई जागना न्याज़ मौला शारा बन तहूरा के सागर थे। अली ने अंगुश्तरी अपनी उंगली में पहनी, कौन सी? इख्तियारात इलाहिया वाली, इख्तियारात इलाहिया वाली अंगूठी अली ने अपनी अंगूठी जो है अपनी उंगली पे पहनी, यदुल्ला वाले हाथ में वो अंगूठी अली ने पहन ली। बात जाया ना हो, अली ने सज संवर के अली एक नूरी कुब्बे किबरियाई में गए कि उसने भाई जब अली उस नूरी कुब्बे किबरियाई में दाखिल हुए, जाफर ज़मान के बला लिखते हैं कि अली जब उस नूरी कुब्बे किबरियाई में दुल्हा बनने के लिए दाखिल हुए तो उसने खुद के घर में आने वाले को खुद तैयार किया। अली सज संवर गए, अली सज संवर गए, अली सज संवर गए। अली कुब्बे किबरियाई से बाहर आए। अली ने अपने चेहरे पे जागना न्याज़ मौला आखिरी लफ्ज़ है इसी की। मैं आपसे खैरात तो नहीं कहूँगा, दाद और दुआई
कहूंगा जो मुझे आप दे सकते हो वो मुझे दे देना। अली बाहर निकले, अली ने इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत का जागना न्याज़ मौला लफ्ज़ खैरात में सैयदा ने बख्शा, किसी का चबाया हुआ टुकड़ा हो मैं इधर गर्क हो जाऊं, लेकिन अगर आप सुन के समझ के ना बोलो फिर तुम जानो और बोलने की कुव्वत अता करने वाला गाजी का बाबा जाने। जागना न्याज़ मौला क्या किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली वलायत का जागना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली वलायत का आयत का वलायत वाला भाई जागो, सेहरा सरकार सर पे सजा के चले। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत का वलायत वाला सेहरा सरकार सर पे सजा के चले। इधर सरकार अपने चेहरे पे सेहरा सजा के चले, उधर आवाज़ किबरिया होती है, हुराने जन्नत, गिलमाने जन्नत, मलाइका फरिश्ते, बस जिसकी आज तक हसरत थी ना कि मुझे देखे, वो देखो मेरा चेहरा सेहरा पहन के जा, वो देखो मेरा चेहरा सेहरा पहन के जा रहा है, वो देखो। एक सलवात पढ़े बुलंदतर अल्लाह, वो देखो जाफरी साहब नहीं नजर आ रहे, मुल्क से बाहर चले गए, चले मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वो देखो मेरा चेहरा, मालिक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। विदमी जागना न्याज़ मौला, वो देखो मेरा चेहरा सेहरा पहन के जा रहा है, वो देखो अली चले, अली की बारात चली, अली की बारात चली, खुशियां तकसीम करते हुए सदके में कायनात में ये बारात चल रही थी कि ये बारात पहुंची, इस्तकबाल किया रसूलुल्लाह के घर वालों ने, अल्लाह के घर वालों का, अल्लाह के घर वालों का, रसूलुल्लाह के घर वालों ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद एक खास हुजरे में बैठा दिया गया, बारातियों को एक खास कुर्सियां बिछाकर उस पर बैठा दिया गया। भाई जागना न्याज़ मौला एक कुर्सी रखी गई, वो कुर्सी आम सी कुर्सी नहीं थी, वो आयतल कुर्सी की कुर्सी थी, उस पे आयतल कुर्सी के मिसदाक को बैठाया गया, आयतल कुर्सी के मिसदाक को बैठाया गया। अली बैठ गए, निकाह पहले हो चुका था, अब होना थी रुखसती, अब होना थी रुखसती। एक नूर की अमारी जमीन पे नाजिल हुई, एक नूर की अमारी जिसे आप डोली कहते हो, नूर की अमारी नाजिल हुई, उसमें रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को हिजाबुल्लाह को हिजाबों में, भाई जागना न्याज़ मौला हिजाबुल्लाह को हिजाबों में बिठाकर रुखसत किया कि इधर इस्मत का कुरान अमारी में था, इमामत का कुरान साथ चल रहा था, इमामत का कुरान साथ चल रहा था। जिस लफ्ज के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, लो वो आखिरी लफ्ज आपके हवाले करने लगा हूं, दो जुमले मुसाहिब के और तालिबे दुआ। जब अल्लाह ने ये निकाह कर दिया उस वक्त आवाज तौहीद आ दिया, दुनिया वालों आज मैंने वहदत की शादी की बुराई से कर दी, आज मैंने नमाज का अक़्द नियत से कर दिया, आज मैंने तफसीर की शादी कुरान से कर दी। और याद रखे ज़माना, अली तेरा शुक्रिया, फातिमा तेरा भी शुक्रिया, तूने शादी करके मेरा कुफ्र व नाअहद होना बचाया। अली तूने शादी करके मेरी किबरियाई तूने शादी करके अल्लाह मेरा कुफ्र व नाअहद होना बचाया। सलामत रहें आप, सदा जीते रहें। मेरा कुफ्र अहद होना बचाया, न तेरा कुफ था न मेरा कुफ था। जागना न्याज़ मौला, अली ने हर जगह पे तौहीद को बचाया। और ये तुम्हारे मौला के इरफान की किताबों में लफ्ज़ मौजूद हैं, मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे मनवाया है, मैंने अपना आप घटा घटा कर तुझे मनवाया है। यही वजह है अली सोए तो वो बचता है, जागो न्याज़ मौला, अली जंग करे तो वो बचता है, अली निकाह करे तो वो बचता है। इसलिए तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, यहाँ वहाँ इधर उधर नगर नगर गली गली खुदा को ढूंढता था मैं मगर मिल गए अली, खुदा को ढूंढता था मैं मगर मिल गए अली। ये ज़माने को अली की मारिफत ही नहीं, अगर ज़माने को अली की मारिफत होती, अली ने इस दीन के लिए, अली ने उसको बचाने के लिए जो कुछ भी किया, लो मेरा आज इस मिंबर से चैलेंज है, अली ने जिंदगी में जो कुछ भी किया ना तौहीद को बचाने के लिए किया है।
निकाह भी आपने सुना तौहीद को बचाने के लिए किया है। अली ने कोई जंग की है तौहीद को बचाने के लिए की है। अली ने कोई काम भी किया है तौहीद को बचाने के लिए किया है। जब तक जाकिर साहब नहीं आएंगे मैं मुसाहिब शुरू नहीं करूंगा। एक जुमला और सुन लो। हुआ यूं भाई दागना न्याज़ मौला जो कुछ भी किया है अली को बचाने के, मेरी तरफ देखिएगा, अली ने उसको बचाने के लिए किया है। एक दिन ऐसा आया कि अली को रसूल ने कहा बिस्तर पे सो जा। अली को रसूल ने कहा बिस्तर पे सो जा। अली सो गए और अली सोए ऐसा कि सवाल हुआ मेरे मौला से, या अली आपको नींद आ गई? तलवारों के साए में आपको नींद आ गई? अली ने मुस्कुरा के कहा जैसी नींद मुझे उस रात आई वैसी आई ही नहीं। जैसी नींद मुझे उस रात आई मुझे वैसी नींद आई ही नहीं। बस सरकार हुआ यूं कि रसूल ने कहा या अली सो जा, या अली सो जा। अब अली सरकार तो जो हाथ मेरी अब आपने इधर उधर नहीं देखना, मैं इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत करूंगा। अब अली को रसूल ने कहा कि सो जा। अली सो गए। अली से सवाल किया गया, जो कुछ भी किया मैंने बात से बात निकाली है, डंडी मारने में नहीं आती, मैं कंजूसी नहीं करांगा। सरकार तो हाथ आपने कर दी। अली सो गए। या अली आपको नींद कैसे आ गई? कहा जैसा मैं सोया हूँ ऐसा इससे पहले सोया नहीं। बात मैंने एक बात के लिए रोक के रखी हुई, हमने अकीदा अपने अली से लिया है, हमने यकीन अपने अली से लिया है। यकीन कहते किसी अली ने एक लफ्ज में समझाया है। पूछने वाले ने कहा या अली आपको मौत से डर न लगा? आपको तलवारों के साए में नींद आ कैसे गई? तलवारों के साए में नींद आ ही नहीं सकती। नींद आती है रिलैक्स हो गए, नींद आती है मिजाज से। तलवार आपके सर पे कोई लेके खड़ा हो जाए, कोई कहे जबरदस्ती के सो, आप सोच सकते नहीं। अली ने कहा मुझे नींद आ गई। उस वक्त अली ने मुस्कुरा के कहा मुझे मोहम्मद की जबान पे यकीन ही इतना था, मुझे हर रात मौत आ सकते थे, मुझे इस रात मौत नहीं आ सकते थे। या अली आखिर वजह क्या थी? या अली ऐसा आपने क्यों कहा? अली ने कहा मुझसे मोहम्मद वादा करके गए थे, या अली आज सो जाओ कल इमारतें लेकर आ जाना, कल अमानतें देकर या अली आ जाना। और मोहम्मद ने एक रात के लिए भी अमीन बनाया तो अली को ही बनाया, एक रात के लिए भी अमीन बनाया तो अली को एक रात के लिए। तो फिर समझ जाओ कि जो नबी एक रात के लिए काफिरों की अमानतों का अमीन किसी गैर मासूम को नहीं बनाता, मिंबर का अमीन कैसे बना? अब सरकार अली सो गए। या अली सोना है, अली बिस्तर पे सो गए। अब ये काफिरों ने प्लानिंग की हुई थी, वाकया आपका सुना हुआ है। इन्होंने कहा कि अली, इनको पता तो था नहीं, नबी इन्होंने कहा सो रहे हैं, नबी पे हमला करेंगे। इन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक 70 काफिरों ने 70 तलवारें ली। ये तलवारें लेकर आए। इन्होंने आके जैसे ही चादर हटा कर देखा तो वजहुल्लाह था, जैसे ही चादर हटा के देखा तो वजहुल्लाह था। यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि अली को इसलिए सुलाया कि अली जब सोते थे नबी तो नूर छलकता था। तो अब आज यहाँ पे उसने सोना था जो सोए तो नूर छलके, जो सोए तो नूर छलके, जो सोए तो नूर छलके। भाई सवाल बात हो सकती है, मैं किब्रियाई की तन्हाई में वजूद ना रखने वाले खुदा से अकीदत की आंखें बंद करके सवाल करता हूँ, मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे अल्लाह, जिब्राइल फरिश्ता भी तो है ना, वो भी तो नूरी है। अली की जान मुसीबत में डालता क्यों है? अली को बिस्तर पर सुलाता क्यों है? तो मोहम्मद के बिस्तर पर जिब्राइल को सुला दे, है तो वो भी नूरी, उसको जिब्राइल को मोहम्मद के बिस्तर पर सुला दे। अजब नहीं आवाज़ किब्रिया है कि जिब्राइल नौकर है, नौकर सरदार के बिस्तर पर सो नहीं सकता, नौकर सरदार के बिस्तर पे सो नहीं सकता। तो जिब्राइल फरिश्ता नूरी होकर, मुअल्लम मलाइका होकर, सरदारे मलाइका होकर एक रात के लिए मोहम्मद के बिस्तर पे नहीं सो सकता, तो कोई गैर मासूम मोहम्मद के मिंबर पे कैसे? के मिंबर पे कैसे बैठ सकते? अब सरकार ये चादर, ये तलवारें लेकर आए कि इधर अली सो रहे थे कि अली के सर की तरफ मिकाईल फरिश्ता खड़ा था, अली के कदमों की तरफ जिब्राइल फरिश्ता खड़ा था। जागना न्याज़ मौला मेरे भाई,
जिब्राइल फरिश्ता खड़ा था। अब जिब्राइल कदमों में खड़ा है, मीकाइल सर पे खड़ा है। आधी रात गुजरी तो मीकाइल जिब्राइल से कहता है, जिब्राइल देखना किस्मत की बात है, अर्श पे तो हमारा सरदार है, फर्श पे तो अली के कदमों में खड़ा है, अर्श पे तो हमारा सरदार है। अल्लाह ने ड्यूटी देखो कैसी लगाई कि मुझे सर पे खड़ा कर दिया, तुम्हें कदमों में खड़ा कर दिया, तुम्हें कदमों में, मुझे सर पे, तुम्हें कदमों में, मुझे सर पे खड़ा कर दिया। जब कहा ना मुझे सर पे खड़ा कर दिया, उस वक्त जिब्राइल मुस्कुरा के कहता है कि का फेल हिकमत से खाली नहीं होता, तुझे पता ही नहीं है तो है अली के सर की तरफ खड़ा, लेकिन तेरी नजरें अली के कदमों पे है। मैं अली के कदमों में खड़ा हूं, मेरी नजरें अली के चेहरे पर, मेरी नजरें अली के चेहरे पर है। जागना न्याज़े मौला। अब हुआ यूं कि ये आए, इन्होंने आके देखा तो नबी की जगह पे अली थे। इन्होंने नबी की जगह पे अली को देखा, डरे, दौड़े, वापस गए, जाके अबू जहल से कहने लगे नबी तो चले गए, नबी तो चले गए, वहां तो अब अली सो रहे हैं, वहां तो अब अली सो रहे हैं, और तुम्हें तो पता है हम अली से बड़े बड़े डरे हुए हैं, हम तो अली से बड़े बड़े डरे हुए हैं। तुम्हें तो पता है वो वाकया याद है जब अली घर से निकलते थे, अली खजूरें खाते जाते थे, गुटलियां संभालते जाते थे, अली खजूरें खाते जाते थे, गुटलियां संभालते जाते थे। जब हमने छतों पे चढ़ के रसूल पे हमला करना चाहा तो अली ने क्या किया, अली ने एक एक गुटली मारी, जिसको मारी, जिसके हाथ पे लगी हाथ चला गया, जिसके सर पे लगी सर चला गया, जिसके कंधे पे लगी कंधा चला गया। हम बड़े डरे हुए हैं, हम अली से बड़े डरे हुए हैं, हम अली से बड़े डरे हुए हैं। जब इन्होंने कहा हम तो अली से बड़े डरे हुए हैं, वहां तो अली सो रहा है। अब इसने कहा अच्छा वहां पे अली सो रहा है, नबी चले गए। अगर नबी चले गए तो दो काम हुए होंगे, कौन कौन से? हम काफिरों ने जो अमानतें मोहम्मद को दी हैं या तो वो ले गए होंगे, अगर लेकर नहीं गए तो अली को दे गए होंगे, अगर वो ले गए तो हम सुबह उठ के ये कहेंगे नाउज़ बिल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा अमीन नहीं रहे, हमारी अमानतें हमें बिन बताए ले गए। और अगर अली को दे गए तो अली को क्या पता कि हमारी अमानतें कौन सी हैं, अली को क्या पता हमारी अमानतें कौन सी हैं। हम ऐसा करेंगे अली से दुगनी अमानतें निकलवाएंगे। जब अमानतें कम पड़ जाएंगी अली रसूल को बुलाने पे मजबूर हो जाएगा, जब रसूल आ जाएगा हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब इन्होंने ये बात की, बात करने के बाद ये कबीना चुप हुई, ये चुप हुए। अबू जहल सर उठा के कहता है चलो मेरी कबीना ने ये फैसला कर लिया है, लेकिन याद रखना है वो भी अली है वो भी अली है, वो भी अली। अब जब इन्होंने ये फैसला किया, दिन हुआ, दिन का होना था कि सूरज अली के हुक्म से तलो हुआ। हाय 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 भाई जागना न्याज़े मौला। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, अली के हुक्म से सूरज तलो हुआ कि एक आवाज पूरी बस्ती में सुनाई दी कि जिसकी अमानत रसूल के पास थी वो आके मुझे अली से ले ले, वो अपनी अपनी अमानत आके मुझे अली से ले ले। जब कहा ना अपनी अपनी अमानत आओ और आके मुझे अली से ले लो कि लोग चले। अब ये काफिर उसी तरह इनकी प्लानिंग थी, जो ये उसी प्लानिंग के तहत चले। ये 70 काफिर आए, इन्होंने आके जैसे ही देखा अमानतें पड़ी हुई हैं, अली ने कहा अपनी अपनी अमानत उठा लो। अली ने कहा अपनी अपनी अमानत उठा लो। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने अपनी से दुगनी अमानत उठाने की कोशिश की। उसने जैसे ही हाथ डाला अली ने इसकी कलाई पकड़ के कहा ओहो अपनी। इससे अच्छा तर्जुमा मैं कर नहीं सकता, कहा सिर्फ अपनी। हैरान हुआ, पीछे हटा, पीछे हट के कहता या अली आपको कैसे पता? अमानत दी तो हमने नबी को थी, आप या तो नबी को बुलाए या अमानत उठाने दें, या तो नबी को बुलाएं या अमानत उठाने दें, या नबी को बुलाएं या हमें अमानत उठाने दें। उस वक्त अली ने जवाल में आके कहा भाई ये जो तुमने सोच रखा है ना, ये जो तुमने एक सलवात पढ़े बुलंद पर, बच्चों को ना आने जाने दो, माहौल डिस्टर्ब होता है। एक और सलवात पढ़े बुलंद पर। क्या किया
कहा ये जो तुमने प्लानिंग की हुई है, जो तुम सोच रहे हो कि रसूल आ जाएंगे या हम अमानतें दुगनी ले जाएंगे, ना 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 ना, रसूल ने आना है, ना अमानतों ने दुगना होके जाना है, ना रसूल ने आना है, ना अमानतों ने दुगना होकर जाना है। तुम्हारा ये ख्याल, ये गलत फहमी इसी तरह ही रह जाएगी। मैं अली होकर तुम्हें हुक्म देता हूँ, सिर्फ अपनी अपनी अमानत उठाओ, नहीं तो फिर याद रखो वरना होगा क्या, वरना ये हर अमानत खुद बोल के कहेगी मैं इसके हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ। इन्होंने अमानतें अपनी अपनी उठा ली, डर गए। अबू जहल पीछे हट के कहता मैंने कहा था ना वो अली है, मैंने कहा था ना वो अली है। इन्होंने अमानतें उठा ली, ये चल दिए। अभी ये चले थे, इन्हें पता चला अब अली ने भी नबी के पास चले जाना है, अब अली ने भी नबी के पास चले जाना है। इन्होंने कहा कि नबी भी चले गए, अली भी चले गए, अगर ये दोनों भाई हमारे हाथ से निकल गए, हमारे हाथ में तो आएंगे नहीं, अब हम करेंगे क्या, इनको फतह हो जाएगी, इनके दीन को कामयाबी मिल जाएगी। इन्होंने कहा इस अली ने हमारे बुजुर्गों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, हम अभी जाके अली को गिरफ्तार करते हैं, अभी जाके अली को गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहम्मद आने पे मजबूर हो जाएगा, मुस्तफा आने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों, काफिर भी जानते थे कि मोहम्मद अली के बगैर रहता ही नहीं है, मुस्तफा अली के बगैर रहता ही नहीं है। सरकार इन्होंने ये सोचा, सोचने के बाद इन्होंने फिर तलवारें नयाम से निकाली, नंगी तलवारें करने के बाद ये आए, आके अली का घेराव किया। अली का घेराव करने के बाद इन्होंने 70 तलवारें अली के कंधों पे रखी। इधर 70 तलवारें जब अली के कंधों पे रखी, रखने के बाद अबू जहल कहता या अली याद रख, या मोहम्मद को बुला, या आज खुद गिरफ्तार होगा, आज मैं तुझे मार सकता हूँ, तेरा सर कलम कर सकता हूँ, आज 70 तलवारें तेरे सर पे हैं। उस वक्त अली ने ये दुल्ला वाले हाथ से सैफुल्लाह को निकाल के अबू जहल के नाक पे रख के कहा बस याद रखो और सोच के इनको कहना मुझ पे हमला करे, आज मेरा हाथ पकड़ने वाला मक्के में नहीं। बोले बोले सखी सरदार कलंदर सलामत हाथ पकड़ने वाला, आज मेरा हाथ रोकने वाला इधर नहीं, आज मेरा हाथ रोकने वाला इधर नहीं है। 40 काफिर डर के पीछे हट गए हैं तो अली या दुल्ला में जब सैफुल्लाह आ जाए तो फिर बड़े बड़ों के सर कलम हो जाते हैं। बस सजादारो या लहरा, या लहरा। तीसरा दर्द बीबी का, सदात से माफी मांगकर खुलूस से जितनी नौकरी दे सकता था मैंने दी है। तीसरा दर्द इस बीबी का ये है, कायनात की पहली और आखिरी मस्तूर है, सैयद मुझे माफ करना, जो जब तक जिंदा रही है बेटों से चेहरा छुपाती रही। फातिमा जब तक जिंदा रही है, तुम्हारे नबी की बेटी जब तक जिंदा रही बेटों से चेहरा छुपाती रही। एक दिन हसन मौला ने कहा अम्मा, हर माँ अपने बेटे को चेहरा दिखाती है, अम्मा तू हमसे चेहरा क्यों छुपाती है? इस वक्त रो के कहती है जब मर जाओ हसन मेरे कफन को खोल कर देख लेना, मैं तुमसे चेहरा क्यों छुपाती हूँ। जब हसन मौला ने कफन खोल के देखा, चेहरे पे निशान, राके कहता हुसैन मेरी तलवार लेके आओ। इन्होंने मेरी माँ को लावारिस समझ लिया, ये तमाचे मारते रहे, ये ताज़ी कुर्बान आओ।